I remember what happened on the 22nd of April. I was in the newsroom when the first news flash came in that there had been a terror attack in Pahalgam. It was roughly around 4:35 when the first flash came in that there was a terror attack. But what happened, the gravity of the attack, the number of people killed. By then, when the first flash came into our newsrooms, the attack was already over. 26 lives had already been lost. And when the first pictures came in roughly a little after 6 p.m. is when we understood what had happened in Pahalgam. And I have someone who is on the Republic campus today. She is Aishanya Dwivedi, the wife of Shubham Dwivedi, one of the 26 who were killed by Pakistani terrorists in Pahalgam. She was there in Pahalgam, and her husband was shot dead in front of her eyes. We heard her story a few minutes back. Aishanya, when people hear you speak, and when I heard you speak for the first time, I have to be honest that I wondered, where did you get that courage from to speak the way that you do? I mean, it must take a lot of you to recollect each of those moments and relive it for people. But I also see that in that reliving of what happened in Pahalgam, there is a message that you carry, and you are proud of the stand that you took back then. But I won't get into that right away. But how are you coping with things? We are 3 months post Pahalgam. I'll tell you, it's not easy. You're comfortable with Hindi if it's fine. Sure, please go ahead. Okay. It's not easy. किसी के लिए भी नहीं होगा. Every one of us get up. Like I'll tell you very personally, getting up in the same bed when he's not there, that's the most hurtful thing. अब मुझे पता है मैं बगल में हाथ रख रही हूँ and my husband is not there. It kills you. And मैं इस feeling के साथ रोज जग रही हूँ. And वो सारी 26 औरतें, I don't know how is everybody coping up with this. Nobody can. And when seeing something like that, एक होता है कि your husband died, you got the news. एक होता है seeing him and the way he was actually gone. He was on me and everything. I've told everywhere, so मेरे को नहीं बताना बार-बार वो बस. It's not the right way to go किसी के लिए भी. और फिर वो लेके लाइफ में आगे जीना for a wife, it's very difficult. You cannot forget it ever. वो मुझे पता है when I'll be on my death bed, when I'll be closing my eyes, वो जो नहीं होता एक 7 मिनट का एक recap लाइफ देती है, उसमें वो सबसे पहले आएगा, मेरे को मालूम है. After that, all the good memories will also come, but that will also come. It will not go. I thought I'll talk about this towards the end, but since you mentioned it, I was speaking to one of the victims' wives yesterday. In fact, I wanted to get her on the show because when US designated TRF as a terror organization, I wanted to speak to your family as well. But I understood that you were coming here today and I wanted to take the occasion to speak to you. I spoke to Kamakshi. Kamakshi is the wife of Madhusudan, one of the victims who hails from Karnataka. And she broke down, in fact. She said, I've never come on a TV interview. I don't want to. Primarily because I don't want my son to see me break down. Very true. I totally understand those women. Yeah. And she said, this morning I went to a counseling session with my son because my son saw his father get shot. Very difficult. There was one 7-year child who spoke with the media also. There was one 11-year-old child. How I don't know वो बच्चे कैसे इस चीज़ के साथ अब आगे रहेंगे. We as an adult, we are not able to get out of this. They are still kids. They have that glimpse that happened in front of them. जब हम नहीं निकल पा रहे हैं तो वो पता नहीं कैसे निकलेंगे. And very true. जब ये था कि media is approaching and everything, तो my family loves me a lot, both the families. तो they asked me कि तुम जाना चाहती हो सामने या नहीं. It's totally your call. If you don't want to go, none of us will say. पहले तो मेरे हिम्मत नहीं थी कि मेरे को जाना है.
कि मेरे को टीवी में बात करनी है या मेरे को बात कुछ भी मेरे को मीडिया में बोलना है. बट मैं शुभम की उस दिन लास्ट राइट्स थे जिस दिन मैंने पहली बार मीडिया पे बात की थी. शुभम था वहाँ पे एंड आई वाज सिटिंग एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये शुभम के साथ हुआ है, लोगों को पता कैसे चलेगा. इफ़ मैं जिसके साथ ये चीज़ हुई है नहीं बताऊंगी, हाउ विल पीपल नो. एंड ऑल्सो आई वॉज फीलिंग कि मैं बताऊंगी, लोग मुझे पहचानेंगे, लोग कल को मुझे आके बहुत कुछ बोलेंगे. पीपल स्टिल डू इट. मैं अभी बाकी बिहारी मंदिर गई थी 2-3 दिन पहले, तो देयर वाज 1-2 वुमेन दे वर पासिंग बाय, कह रहे अरे ये तो वही है जिसके पति को मार दिया था पहले. पीपल से थिंग्स लाइक दैट. इसलिए लोग नहीं आने चाहते बाहर. पीपल दे डिस्टर्ब यू मेंटली, इसलिए लोग नहीं आना चाहते बाहर. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ फैमिली जो मेरे को इतना पॉजिटिव सपोर्ट करती है हर चीज़ में. तो लाइक व्हेन आई एम ब्रेकिंग डाउन ना, एवरी टाइम यू सी माई सिस्टर इन लॉ सिटिंग हियर, एवरी इंटरव्यू शी वॉज सिटिंग देयर. एवरी when first time when I spoke to the media, all the sisters, all the brothers were standing holding me, क्योंकि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी तब. मुझे बस इतना था, मैंने चिल्ला के बोली थी ये बात कि मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वहाँ हुआ क्या था. वहाँ चिल्ला रही थी ये बात. एंड देन मैंने पूरी बात बताई थी. मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही हूँ उन लोगों को जो लोग मीडिया पे नहीं आना चाह रहे, जो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे, बिकॉज it's not easy to live with this. People start to know you and then they start saying a lot of things about you, negative and positive both. One woman came up to me holding my hand. She said, I'm really proud of you. She said that. There were a lot of Instagram messages I keep getting every day with good things only. But there are a lot with negatives also. इसलिए लोग नहीं आते बाहर. वो जो आप बता रहे थे ना कर्नाटक, she said she doesn't want to come face the media. I feel her. I literally do. उसका बेटा उसको कभी भी आगे जाके उनको देखेगा ना, तो वो बेटा जितना रिकवर हो पाया है काउंसलिंग से, वो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा अपनी माँ को वैसे देख के. आई डोंट हैव अ सन टू लुक, आई ओनली हैव माई एल्डर्स. मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई बहन या मेरे साथ के भाई बहन, दे स्टैंड विथ मी. You know, I remember I went to Kashmir last year, 2024 January. In fact, you know, I've grown up in the newsroom because I've worked in a newsroom for about 15-16 years. And what Kashmir was in let's say the 2000s, right, and the 2010s. I remember every Friday after 1 p.m. people would, you know, news would come into the newsroom that stone pelting ho raha hai after Friday prayers. That would be every Friday for almost 10 years I've got that news, and I've broken that news because I've been in a newsroom. But something changed, of course, after Article 370 was abrogated, and we heard all these good things, and I went there to Kashmir, and I felt it is really safe. And I heard you when you felt, and when you said some time back that you felt Kashmir is safe. We did all. आप क्यों पूरे घर को लेके जाओगे? हम 11 लोग गए थे. अपने पेरेंट्स के साथ रिस्क नहीं लेते हो आप. फर्स्ट कॉल इज़ कि हम पेरेंट्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते. आपने डिसाइड ही अगर किया है कि आप फुल फैमिली जाओगे तो यू नो कश्मीर इज सेफ. बट आई टेल यू वन मोर ट्रुथ. पहला कि कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं. आई एम नॉट सेइंग पूरे कश्मीरी ऐसे, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि हम जिस होटल में थे उस होटल वालों ने भी हमारी बहुत मदद करी थी आफ्टर द इंसिडेंट. लिटरली हमें बैठ के अपने हाथ से उन्होंने खाना खिलाया क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की. बट देयर इज़ अ अदर साइड ऑफ कश्मीर ऑल्सो, जहाँ पे लोग बहुत क्रूअल हैं. और मैं नहीं कह रही कि वो हैं ऐसे, मैं उनको ऐसा बनाया गया है. उनकी किसी ना किसी आतंकवाद क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके किसी नेगेटिव को, आपकी कमज़ोरी को पकड़ के, उसको गरीब है अगर इंसान तो उसको पैसे दे के बड़ा करते हैं. व्हाट ऑल आई हैव सीन इन अराउंड. तो वो यहाँ से खेलते हैं और यहाँ से खेल के सामने वाले को इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा घुमा देते हैं कि वो कश्मीरी उन्हीं टेररिस्ट की भाषा बोलने लगते हैं. वो कश्मीर में रह के, इंडिया में रह के हमारे नहीं है. बट दे आर लॉट जो हैं भी,
I'm not saying पूरा कश्मीर ऐसा है, बट बहुत ज़रूरत है कश्मीर की सोच से लड़ने की, बहुत ज़रूरत है हमें. You're right, because if there weren't those people who are radicalized, then the terrorists wouldn't have found any help. They obviously helped terrorists, they fed terrorists, they shielded terrorists, right? I'd like to talk to you a little bit more about that. I mean, because Shubham was the first to be shot. You were close to the gate, and there were 11 of you. I don't like. My intention is not so that you relive each of those moments. I know it's painful for you, but immediately after, when did you first see them, the terrorists? The moment he approached us. Was it one terrorist? The guy who approached us was one, but 26 लोग को वो अकेला नहीं मार सकता. They are lot of, लेकिन सबको मैंने देखा नहीं. Because you see, when something like this happens, it's such a loud memory कि आपको उसके बाद की चीज़ें याद रहे ना रहे वो भी पता नहीं. Because मेरे को याद है कि मुझे कुछ चीज़ें ना बाद में याद आई हैं कि ये हुआ था, अच्छा वो हुआ था, अच्छा इसके बाद ये किया हमने. मुझे उस समय का याद ही नहीं है मैंने क्या रिएक्ट किया क्या नहीं. Although this guy, and after the investigation was going on, so there was some people who approached us with the video and जो investigation कर रहे हैं इस पे, तो उन्होंने हमें पूछा कि आप एक वीडियो दिखाया था उन्होंने, उसमें पूछा कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. तो जो शुभम का एक वीडियो आफ्टर ही वाज बीइंग शॉट, उसका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखा था बहुत ज़्यादा, जिसमें वो दिख रहा है the way he is injured. उसके पीछे जैसे he is there, उसके पीछे एक शॉल पड़ी है. तो this guy in the video is sitting with that shawl like इतने दूर पे, अब 1 or 2 hand difference में, ठीक है. शॉल पूरा ऐसे लपेटा हुआ है. आपको कैसे पता चलेगा उसके अंदर AK-47 है? वो बैठा है फ्लोर पे शॉल ऐसे लपेट के. And the next moment that guy only approached us because वो शॉल नीचे पड़ी है. शॉल नीचे पड़ी है. Pretended to be someone else? Obviously, अगर ये वहाँ पहले से हैं, तो they are pretending to be someone else. So they were already there. They were already there. No, it's no, not no, like no. they came from outside. They were already there. They were there. One gunshot happened, and seconds after that this happened. मतलब हुआ क्या था? एक gunshot सुनाई दी, मैंने देखा, मैंने gunshot, and this guy was asking कि हिंदू हो या मुसलमान. इतने seconds का था ये. So they were all there in the valley and different locations, ready to ambush. Yeah, वो पहला जो गन शॉट था ना, it is like शुरू करो, because वो होने के बाद ही बंदे ने अप्रोच किया. वो ऐसा ही हुआ था. And thankfully not all the 11 members were up there. हम 5 लोग ऊपर गए थे. 6 people stayed down in the valley. बिकॉज घोड़े की चढ़ाई से, घोड़े से जाता है तो इट्स लिटिल स्केरी, नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद पोनी. तो 6 लोग नीचे उतर गए थे. 5 of us went upstairs. तो मी एंड शुभम वर सिटिंग टुगेदर. माई सिस्टर वॉज सिटिंग, माई रियल सिस्टर वॉज सिटिंग थोड़ी दूर पे, एंड माई मदर वॉज सिटिंग थोड़ा आगे. माई फादर वेंट टू द वॉशरूम, ही वॉज कमिंग बैक. तो उनके पास से गन का शॉट गया, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वो पलट के देखते तब तक में वो गन के कई शॉट्स उनको सुनाई दिए. तो ही वेंट आउट, बिकॉज वो आ रहे थे हमारे पास, हम थे, पापा आ रहे थे, ये गेट था, तो ही वेंट आउट. इतना ज़्यादा पास थे हम गेट के कि शायद ये कहीं और होता तो हम स्केप कर पाते. बट दे यूज देयर ब्रेन कि यहीं से शुरू करो, भागने का ही मौका नहीं देना है. So that everybody runs in the other direction. Yeah. और एक ही स्केप है, एक ही जगह है जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, जहाँ से एंट्री करते हो. ये पता नहीं कहाँ से आए थे, शायद वो 100% वो पहले से थे, क्योंकि पूरे साइड्स में ना फेंसिंग है. अगर कोई कूद के आ रहा है तो वो पता चल जाएगा. तो ये बंदे वहीं पे थे. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन बंदों के पास AK-47 वहाँ आई कैसे? वो वैली कितना ऊपर है? पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है. वहाँ कहाँ से आई? इट्स द लोकल हु आर हेल्पिंग. इट्स द पीपल हु दे आर हेल्पिंग. वही तो प्रॉब्लम है कि आप बाहरियों से तो लड़ भी लोगे, अपने ही अंदर वाले जो आपको खोखला कर रहे हैं उनसे कैसे लड़ोगे? उनसे आप क्या कर लोगे? आप उनको क्या ही बोलोगे? आप पहचान कैसे पाओगे कि हमारे बगल में जो आज हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहा है वो कल जाके टेररिस्ट को 2 रोटी खिला के उनके साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा होगा?
कि ये अटैक करना है, कैसे पता आपको? और अपनों ये को तो जो शक भी नहीं करते। और ये जो स्टॉल्स थे जो just close to you, Very close. Gate, stalls, we were sitting here. and what happened to everybody in the stalls? Vanished. Because पापा के पास से जब गोली गई ना, he was near the stall, उसके पहले शुभम को गोली लग चुकी थी। तो अगर पापा स्टॉल वाले के पास ही थे, तो he was telling me कि कोई नहीं था वहाँ पे, जहाँ से तुम लोग मैगी लेके अभी गए थे थोड़ी देर पहले, वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो मेरे को यही रास्ता दिखा कि मैं बाहर जाऊँ, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता था कि हम किधर बैठे हैं, तो उन्हें भी लगा कि हम शायद बाहर भाग गए हैं, तो वो उनको यही समझ में आया कि मैं बाहर जाऊँ। तो माइंड क्लिक्ड। देन आई स्टिल रिमेम्बर ही वाज टर्निंग बैक टू कम इनसाइड टू फाइंड अस व्हेन ही कुडंट फाइंड अस आउटसाइड। तब तक में हम एग्जिट गेट से बाहर आ गए थे। माय सिस्टर एक्चुअली शी ड्रैग मी, मैं शुभम को छोड़ नहीं रही थी, तो मुझे घसीट के लेके आई। चलो वो मुझे ये चिल्ला रही थी कि पापा मम्मी को भी मार देंगे, तुम ये सोचो। ये तब पता ही नहीं ना कि किसको छोड़ रहे हैं किसको नहीं छोड़ रहे। हमें तो ये लग रहा है कि सब मारे जाएंगे। दैट इज हाउ टेररिस्ट अटैक्स आर। तो मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, अगर नॉर्मल टेररिस्ट अटैक होते तो हम सब भी मार दिए जाते होते। वहाँ पे कम से कम सर 200 से 300 बॉडीज मिलती हैं आपको अगर ये नॉर्मल अटैक होता तो। बट दिस आई वाज टेलिंग ना कि ये यहाँ से लड़ते हैं, ये यहाँ से इंसान को तोड़ते हैं। तो ये वही कर रहे थे, इंसान के अंदर डर फैला रहे थे वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने साफ बोला जाके अपने मोदी को बता दो, तुम लोगों ने यहाँ आतंक फैला रखा है। These were the words they were telling the women. They told you? They did not tell me. उन्होंने सिर्फ मुझे ना ऐसा गन रख के मूव करके चले गए थे। Didn't say anything to me. क्योंकि तब तो शुरू कर रहे हो आप, उन्हें टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। अभी तो पहला शॉट लेके गए हैं। But I've met people. What did they tell Shubham? हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। We couldn't get what he was saying. We again asked, क्या हुआ भैया? He again said the same thing. हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो। Then we replied, both of us said together, हम हिंदू हैं। वर्ड खत्म ही होता है नहीं शॉर्ट, बिकॉज वो पहला था। और देयर एवरी टाइम कि हम सोच समझ के कहाँ पे कैसे मारना है कि इट शुड बी वेरी ब्रूटल, उन्होंने पूरा सोच समझ के शॉट लिया। क्योंकि बाकी जितने आई हैव सीन अदर बॉडीज, कुछ लोगों के तो बॉडीज में बहुत सारी चीज़ें जो इंटैक्ट नहीं है। बट शुभम They took headshots. Headshot and his half face was all over me. It's very scary to, वो रोज याद आता है, वो जाता नहीं है। मेरी बहन और मैंने देखा है, तो ना वो इस चीज़ से बाहर निकल पाती है ना मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाती हूँ। वो नहीं हो पाएगा, मुझे भी लगता भी नहीं। एक महाराष्ट्र का एक बंदा था, मैं उसका इंटरव्यू देख रही थी, उसके फादर को भी हेडशॉट दिया था। तो ही वाज टेलिंग कि यहाँ मारा और ये पीछे का पूरा हिस्सा निकल गया। हाउ कैन समबडी लिव विद दैट कि उसने देखा है अपने फादर को ये होते हुए। बहुत गंदा किया इन लोगों ने, किलिंग समबडीज हस्बैंड, समबडीज फादर इन फ्रंट ऑफ द किड्स, फ्रंट ऑफ द वाइफ। वेरी ब्रूटल। इतना ब्रूटल अभी तक हुए हैं, बहुत टेरर अटैक्स हुए हैं। बट आई वाज टेलिंग ना कि वो बस मारते हैं, उन्हें मतलब थोड़ी है कि हम क्या छोड़ जा रहे हैं, क्या ट्रॉमा छोड़ जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लाइफ लॉन्ग का ट्रॉमा छोड़ दिया है। आपने वहाँ 26 लोगों को नहीं मारा है, आपने कितनी और लाइफें खत्म कर दी। Where were you staying with the family? Which part of Kashmir were you living in? Srinagar. Srinagar. So, you know, things had changed in Kashmir. A large, I mean, I don't know. I mean, it's very difficult to say how many want progress and to be truly integrated with India. It may be a large section or a majority, I don't know. But you're right when you say that there are many elements who are still very, very sympathetic towards Pakistan, right? Now, those are the people that we are faced with, enemies within. And I heard you say that some of them who were at the spot didn't even come to help you. No. They were pony riders जो ऊपर लोगों को ले जा रहे थे।
वो जब बाहर निकले तो बिकॉज माई पेरेंट्स आर ऑलमोस्ट 60, तो हमने उनसे बोला कि हमारे मम्मी पापा को बैठा लो, बिकॉज कोई देयर इज नो वे डाउन स्टेयर्स, इट्स जस्ट हिल, यू हैव टू स्लिप योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट वी डिड. मेरी मम्मी पापा को थेरेपी लेनी पड़ी, फिजियोथेरेपी यहाँ पे, बिकॉज इतनी चोटें थी उनके शरीर पे. और इवन मेरे को, मेरी बहन को कहाँ ब्रूजेस थे हमें याद ही नहीं है, क्योंकि कोई तरीका नहीं. We ran down. We had no idea कि अब क्या होगा. We even thought कि maybe after the valley they'll start coming down. इनके लिए तो पहाड़ उतरना चढ़ना easy है, ये तो काम ही यही कर रहे हैं, ये तो रह ही उन पहाड़ों के बीच में रहे हैं, तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है. हम तो नॉर्मल, हमें नहीं पता पहाड़ कैसे उतर के जाना है. तो वी आज द पोनी राइडर्स, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, हमारे मम्मी पापा को बैठा के लेते जाओ, हमें मत करो, क्योंकि हम मदद नहीं कर सकते. स्ट्रेट हम कुछ नहीं कर सकते. हम आपके घोड़े वाले नहीं हैं, तो हम आपके घोड़े वाले नहीं हैं. वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी? एक इंसान को नॉर्मल चोट लगती है तो हम भागते हैं उसकी हेल्प करने. But they took you on top. They took us on top. The pony riders who took us on top, they vanished. They were not there. They were not there only. They were other, because बहुत सारे. And they were cool. They were calm. हाँ, और फोन पे बात कर रहे थे. There were lot of pony riders who were talking on the phone. Maybe they were telling कि ऐसा हो गया, या I don't know. अब हमें वहाँ सब नेगेटिव ही दिख रहा है. इवन जब हम नीचे उतर रहे थे तो एक मुस्लिम फैमिली थी, वो हमें रास्ता दिखाई. हम विश्वास नहीं कर पाए उस पर कि वो हमें सही रास्ता दिखा रही होगी. हमने नहीं, हम गलत रास्ते में चले जाएंगे, हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या पता वो उन्हीं के मिले हुए लोग हैं. वी हैव नो आइडिया. ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पे लोगों के दिमाग में, लोग कैसे नीचे उतर के आए हैं. इट्स वेरी वेरी हॉरिफाइंग. मतलब रोज़ उसको याद करना इज़ ऑल्सो. हम कभी कभी घर पे बैठ के ना बात कर रहे होते हैं, मैं और मेरी बहन, तो मुझे नहीं पता कौन सी ताकत मुझे नीचे लेके आ पाई है. तुम्हें भी लेके आई हूँ, मैं मम्मी को भी लेके आ पा रही हूँ. मम्मी और पापा तो अपने आप को स्टेबल थोड़ी बार कर लिए, बट मैं और मम्मी भी लॉस्ट इट. एंड शी वॉज द वन वो दोनों को घसीट के नीचे ला रही है. वो अभी परसों ही मैं और वो बात कर रहे थे. शी सेड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि मैं कैसे घर पे, आप उसको देखोगे ना पतली सी एकदम है, वो कैसे किया उसने, नो आइडिया. कोई मदद करता तो शायद बहुत और लोग बच पाते. ये 26 नहीं, शायद 10, 16, 15 ऐसे होते, 26 नहीं होते. अगर वहाँ के लोकल्स खड़े हो जाते मदद करने के लिए. मैं तो कह रही हूँ अगर वहाँ के मुसलमान खड़े हो जाते ना, जिनको पूछ के बोला गया कि कलमा पढ़ो और उन्होंने पढ़ दिया, बोलते नहीं हमें भी मारो, तो शायद बच जाते लोग. वो तो बच के एट द एंड ऑफ द डे वो इसीलिए तो बचे क्योंकि वो मुस्लिम थे. खड़े हो जाते कि नहीं अब हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हो तो हमें भी मारो, तो वहाँ शायद टेररिस्ट से लड़ाई हो जाती, हाथापाई होती, कुछ तो होता. कुछ हुआ ही नहीं, बस मार दिया. पूछा कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए, मार दिया. Obviously the intent was to you also mentioned it, intention was to, one, break the faith of Indians, right, and second, to break the economic backbone of Kashmir. Because I know when I went there, it was crowded. I remember I went to 2 or 3 places, Dood Patri and Gulmarg, and I was in Srinagar. It was crowded, and I felt very safe, honestly. But do you think it, of course people have started going back again, but do you think people have somewhere, will always have a thought at the back of their minds when they go back to Kashmir? They should. जब तक ये पूरे प्रॉपर टेररिस्ट ख़त्म नहीं होते और उनके हेल्पिंग हैंड्स नहीं ख़त्म होते ना, कश्मीर अपने रिस्क में जाना चाहिए लोगों को, ये सोच के कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा बंदा वहाँ पे किस टेररिस्ट को पाल रहा है और किस घर पे कौन सा टेररिस्ट बैठा हुआ है, नहीं पता आपको. आर्मी वालों को भी आप कितना बोल दोगे यार, वो घर घर घुस के थोड़ी ढूंढेंगे. दे आर डूइंग देयर वर्क. हाउ, आप सोचो आपने अपने घर के अंदर किसी को ऐसा छुपा रखा है कि नहीं ढूंढ सकता कोई और, तो आर्मी वाले कैसे आपके घर में घुस के ढूंढ लेंगे? हाउ? फिर आप कल कहने लगोगे नहीं कि आर्मी वाले हमारे घर आके ये करते हैं वो करते हैं. आप ही लोग तो छुपा भी रहे हो ना. क्वेश्चन भी तो वही है. बंद कर दो उनकी हेल्प करना. ये बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ रहे हैं? थ्रू हेल्प. यस.
Stop helping. Finding local guides. Stop helping. These are that is what I'm telling ना. यहाँ से लड़ना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले. आर्मी तो लड़ ही लेगी. They are very strong. Our Indian army is very strong. They can finish off Pakistan in seconds. बट पहली लड़ाई हमें यहाँ से अपने ही लोगों से पहले करनी है कि भाई अपने देश के पहले बनो. What was your response to Operation Sindoor when you first heard that we had struck Pakistan? I was kind of relieved, 1, 2, 3%. वो ना पूरा श्रद्धांजलि जो सही मायने की होती है ना वो तब होगी जब प्रॉपर टेररिस्ट ख़त्म होता है. जब तक एक भी टेररिस्ट है ना हम किसी भी दिन फिर अगले शुभम को खो सकते हैं. तो वो मैं नहीं चाहती शायद, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि टेररिस्ट ख़त्म होनी चाहिए, टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए. इवन येस्टरडे आई वाज टॉकिंग, जब ये पता चला कि US is designated. हाँ, तो मैंने कहा दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट. इससे कुछ होगा नहीं. पहले तो आप पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री बोलो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ओपनली उन्हें जिन ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने जो मारे गए हैं टेररिस्ट हैं. एट द एंड ऑफ द डे वो टेररिस्ट स्पॉट पे मारे गए हैं. और आप बता भी रहे हो कि हमारे इनको मार दिया, हमारे उनको मार दिया, जिनका नाम कहीं ना कहीं है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसमें आते हैं. तो आप उनको झंडे में क्यों लपेट रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सपोर्टिंग देम. एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ही पूरा टेररिस्ट सपोर्टर है, क्योंकि इनको पता है कि उनके यहाँ पैसा फंडिंग टेररिज्म के थ्रू ही आती है. कहाँ से आती है आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बिकॉज आई हैव नो आइडिया ऑल्सो. मेरे को तो आई एम 28, आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स. जो मुझे मोटा मोटा दिख रहा है वो यही है कि वो ओपनली अपने यहाँ पे झंडे में लपेट के उनको फुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं. फिर भी हम अंधों की तरीके उनकी उस एक TRF उनको सिर्फ बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट वाले हैं, ये है जो है. पूरी कंट्री को बोलो, ये सबको खड़े होके बोलना चाहिए. हर एक, it should be all over world, not just India, all over world should get along and say पाकिस्तान ही टेररिस्ट है. Because I've seen some of the videos. ये जो आप बोल रहे, ये जो एक वीडियो आया था ऑपरेशन सिंदूर के बीच में of terrorists getting a state funeral. Exactly. Being draped in the Pakistani flag and Pakistani generals जो इनके आर्मी के कमांडर्स थे और वहाँ के लोकल पुलिस और पूरा सिक्योरिटी भी दी गई थी. एंड दे वर ऑल लश्कर टेररिस्ट बिकॉज वो एक लश्कर का एक कैंप था और जैश ए मोहम्मद का भी एक और कैंप को स्ट्राइक किया था. लेकिन मुरीद के कैंप जो है, आई हैव सीन सम वीडियोज़ ऑफ मुरीद के कैंप of children as young as 4 and 5 boys being given gun training and teenagers, boys being trained to be commandos, to stay underwater, to attack from the water. ये सभी होता था वहाँ पे. So it is a bigger problem. Of course, ये जो शुरू हुआ है, it is something unprecedented India has started. But what is closure for you? What will be closure? What will be justice for you and the families of the 26 who were killed? I don't know closure मिलेगा भी कभी कि नहीं, but I think terrorism खत्म होना ही is the starting of the closure. Do you think it's possible to finish off terrorism? सब साथ हो जाए तो it is very much possible. Why not? Every other people is disturbed because of terrorism. लोग डरते हैं, तो खड़े हो जाओ ना उसके अगेंस्ट, बोलो ना. मुझे पता है if I'm going out, people have recognized my face. Still I'm speaking. ये गट्स सबके अंदर आ जाएगा ना कि हम टेररिस्ट के अगेंस्ट बोलेंगे, हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे. ऑल ओवर वर्ल्ड दिस इज पॉसिबल. ऑल्सो ये जो आप बता रहे हैं ना कि उनको झंडे में लपेटा गया एंड सारी चीज़ें, they've got 14 crores also. Yes, they've got money. And what will Pakistan they use? Government What is will they use it for? They'll build the buildings again. They'll start the terror training again. Exactly. They'll get the weapons again. terror पूरा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. Yeah. Again, everything will start. So put an end to it. पाकिस्तान को टेररिज्म देश बोल दो and boycott it पूरी तरीके से. आपको लगता है कि ये देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ही इनवाइटेड आसिम मुनीर
Asim Munir is the chief architect of Pahalgam. If you look at the comments that he made, he spoke about Hindus before the Pahalgam attack. He made a very, I don't know whether you've heard that comment, but there is a comment of Asim Munir where he said, India and Pakistan can never have anything in common. He said, our enemy is the Hindu. He made a comment like that. And 3 or 4 days after that, there was a Pahalgam terror attack. And everybody knows Asim Munir is more powerful than the Prime Minister of Pakistan. Asim Munir is the army chief. He was invited by America, right? The same America which invites him, which pampers him, has also done this, TRF. And while Operation Sindoor was happening, Pakistani ministers went on record on foreign channels and said, but it is countries like US and UK that gave us the funding for terror. They wanted terrorism to thrive in the region. So, the reason I am asking you this question is because some people feel that US is doing a great job, but do you sense a hypocrisy there in the handling of the fight against terror? It's a very political question. No, I just want, Yeah. I got your point. Yeah. But फंडिंग तो कहीं से तो आ रही है, कहाँ से आ रही है? इट इज़ अ क्वेश्चन. जो फंडिंग दे रहा है बाद में वही बोलता है कि हाँ ये टेररिस्ट है. शुरुआत वहीं से करो ना. आप ही बोलना, आप जो अभी बोल रहे हो कि वो टेररिस्ट है, आप ही पहले से शुरू कर दो, फंडिंग मत दो. आपके यहाँ पे एक केस हुआ, ओसामा बिन लादेन को आपने खत्म कर दिया. अबोटाबाद है ना, पूरी तरीके से. उसको तो कुछ नसीब नहीं करा मिला. मतलब यहाँ पे तो फिर भी उन्हें, अगर पाकिस्तान में ही मारा होता, वहीं छोड़ आए होते ना, तो ये उसको भी पता नहीं क्या ही बना देते, भगवान बना देते उसको वहीं पे. लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया. कुछ नहीं मिला उसका. जब आप अपने देश के लिए कर रहे हो तो दुनिया में सबके लिए कर लो ना. यूनाइट विद अस. क्यों लोग टेररिज्म को फंडिंग देते हैं? क्यों ये नहीं सोचते कि कल फिर से हमारे साथ चीज़ें हो जाएंगी? टेररिज्म को फंडिंग देने से आपको क्या मिल रहा है? आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो. वो फंडिंग से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मारा जाएगा. बीट इंडियन, बीट एनीवन, बीट इवन पाकिस्तानी. अगर वो भी टेररिस्ट अटैक से मारा गया है तो human is, you are taking a human life because of terrorists. Stop that. India will finish terrorism. And somewhere I have this trust कि इंडिया शायद वो शुरुआत करेगा टेररिज्म को ख़त्म करने की. कर दी है. ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टार्टिंग ऑफ इट. एंड एज PM said to me कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है. जब हमसे मिले थे तो PM सर ने बोला ऑपरेशन सिंदूर है, इट विल गो ऑन. सो इट विल ओनली स्टॉप व्हेन द टेररिज्म स्टॉप्स. बस अब ये है कि बाकी जो देश है, बाकी जो और लोग हैं वर्ल्ड वाइड, दे शुड स्टैंड विथ इंडिया. दैट इज़ ऑल. दैट्स द रिक्वेस्ट आई कैन डू. आई एम वेरी स्मॉल एंड आई एम नोबडी टू से एनीथिंग. वो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर टेल यू? ही सेड द ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू. We haven't stopped. This is a big promise he made. And I'm looking up. Ki, now what? It should not stop. That till the date there is terrorists, it should not. पता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है. एक उन्होंने ये सोच के कि औरत को छोड़ देंगे तो औरत कमज़ोर है. No, the females in India are very strong. हम देवी की पूजा करते हैं. How can you think कि इससे तो हम पावर में आ जाएंगे? नहीं. You've heard the females, you've heard the devis. I'm not calling myself, I'm just saying it's a power. You've heard them. जब एक it's very mythological I'll say, but still say. जब जो दुर्गा माँ है उनको जब ऐसा मैंने सुना है mythologically, उनको जब भूख लगती है और वो ऐसे बिल्कुल उसमें आती हैं तो सब भगवान एक्चुअली में आके कहते हैं कि आप शांत हो जाओ देवी, हम लड़ेंगे आपके लिए. दैट इज़ व्हाट हैपेंड. दैट विल हैपन. ऑपरेशन सिंदूर इज़ दैट. पीपल, इंडियन आर्मी है या जो भी है, XYZ, whosoever is related to ऑपरेशन सिंदूर, दे आर फाइटिंग फॉर द वुमेन हु, जिनको आपने छोड़ दिया है ये सोच के कि अब तो औरत है.
हमारा दुख ना सबको दिख रहा है, एंड दे आर गिविंग पावर टू देम टू फाइट, एंड इट विल गो ऑन. Why the name is Operation Sindoor? Yes. Why did the PM said the Operation Sindoor will continue? He could have said कि हम terrorism के against लड़ेंगे. We will keep the fight. He's mentioned Operation Sindoor will continue. It's a power. You have hurt the woman, the feminine part of the country. A lot of the terrorists of Pahalgam, most of them are still alive. Do you think there is going to be a bigger operation? I mean, do you think our army will stop? Because I'm hearing, I don't know, I could be wrong, but I'm hearing that there could be something very, very big on the cards. And when our Prime Minister says Operation Sindoor is still on, somewhere we have a belief that maybe something bigger is also coming. Maybe. And it should. क्या है आर्मी क्या कर रही है या हमारे XYZ जो भी ऊपर बैठे हो क्या करना, नो आइडिया, बट होगा. But you want all of them to be shot dead? They should. The way they killed our husband, the way they killed Shubham, it was so brutal. They should be shot dead like that. No asking questions. They're not going to tell anything. Neither they have informations. कुछ नहीं है इनके पास, ये सिर्फ प्यादे हैं जो गोली निकाल के बंदूकें लेके छोड़ दिए हैं. कुछ नहीं पता है इन्हें. मार दो, खत्म कर दो. You can identify, were you able to identify? I did. I got the pics of three people who were shot. I could identify one of them. And my memory is very soft of the face. So मेरे को ना बहुत photos दिखाई गई थी उसमें. The only that pic I could just that pic could keep hitting me back and back. So I could identify that. So you believe that Shubham's attacker is killed? They are just, I told you अभी बोला ना, वो प्यादे हैं. अटैकर्स तो पाकिस्तान में बैठ के कहीं उनको बता रहे हैं कि ये करना है तुम्हें, खत्म उन्हें करना है. Correct. Hafiz Saeed, because Hafiz Saeed is a mastermind. TRF is Lashkar-e-Toiba का offshoot. पता है मेरे को इसके बाद और नाम पता चलने लगे हैं. Hafiz Saeed. I was very much, मेरी ही गलती है शायद कि मेरे को पहले क्यों नहीं मैंने कभी भी अपने अंदर ये ऐसा अग्रेशन लाया. शायद मेरे साथ हुआ है इसलिए मेरे अंदर ये इतना अग्रेशन है. अब मैं इस बारे में ज़्यादा पढ़ती हूँ, अब मैं इस बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करती हूँ. तो ये these names I now research them. Although I've seen a lot of 26/11 and all की जो movies बनी थी, I could relate to the names and the organization from there तब से ही. But अभी जो hit ज़्यादा करता है ना, वो अब करता है. तो and this will not stop. I will speak against terrorism. I will talk to everybody possible who will help me or help my words to go out there कि लोगों को अंदर कुछ तो आए, that they do something against terrorism, which is happening also. Is that what you want to do, like going forward? I don't know. How has it changed your life? Have you become more stronger today than you were? Yes, that is one thing. I come from a dance background. I teach dance. Okay. Which art form, dance form? Folk and Western. Okay. I'm trained in Western. Okay. And I teach folk also. Okay. तो मेरे अंदर ये सब था ही नहीं कि इतना बात कर लेना, इतना बोल लेना. But when I'm talking after the incident ना, कहीं ना कहीं वो पेन को जो ईज करता है ना, वो भी तभी मेरे को करता है जब मैंने टॉक अबाउट इट. कभी आप ना मेरे घर ऐसे आओ एंड आई एम सिटिंग विद माय सिस्टर, मैं बात करती हूँ शुभम के बारे में, इंसिडेंट के बारे में या थिंग्स लाइक दैट, जो मुझे पता है मुझे और पिंच करेगी, बट आई स्टिल टॉक बिकॉज इट ईजेस माय पेन. लोग मुझे अभी बोलते हैं कि मत करो बात, छोड़ो. नहीं, आई वांट टू. Why should you? You shouldn't stop. I don't stop. See, मैं अभी भी आपके सामने बैठ के पूरा इंसिडेंट मैंने बताया, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं रोई नहीं हुई एक बात करते हुए. टुडे, आज के बाद तक मैं रोई. सो इट इज़ मेकिंग मी स्ट्रांग विथ टाइम. मुझे नहीं पता कि मेरे को आगे क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना. ऑल्दो अभी मैं सिर्फ अपने आप को वापस से नॉर्मल लाने में और घर वालों को नॉर्मल लाने में ही हम लगे हुए हैं. मतलब मैं हो गई, मेरी सिस्टर इन लॉ हो गई, मेरी बहन हो गई, हम तीनों यही करते हैं सिर्फ इस समय. फैमिलीज़
मम्मी पापा को नॉर्मल रखना है, मम्मी पापा को सही रखना है, ये वो हम यही कर रहे हैं सिर्फ इस समय, क्योंकि वी आर 3 गर्ल्स लेफ्ट। शुभम तीनों परिवार में अकेला बंदा था। मैं छोड़ दी थी टेंशन सब शुभम पे कि नो ही विल टेक केयर ऑफ, मेरी टेंशन खत्म। बट वी आर 2 सिस्टर्स मेरे। How long did you know Shubham? 6 months 22 days. 1st October I met him, 2024. It's an arranged marriage. Yeah. But मेरे को फर्स्ट मीट से अरेंज मैरिज लगता ही नहीं है वो. The moment we met, I think our souls were searching for each other from so long, and I do believe in soulmates. And after meeting him, I didn't believe before, but when I was not looking, I met the guy, and I was like so sure about him when I was not even ready to get married. So it is like our souls were searching for each other. It was. हम आ गए साथ. We were so happy. Perfect. Everything was perfect. Tell us something about Shubham. Happy soul. Very happy. You sit with him, you laugh. इतने मस्त मजाक मस्ती मोड में हमेशा रहने वाला. Very intelligent with business. At the age of 31, he was 31. क्या बिजनेस फैला दिया उसने अपना. एंड पापा के साथ ही अपने फादर के साथ ही सब करता था. तो उसमें ही उसने जितना वो, जब भी हम बैठते थे ना तो हमसे यार शान्या अब ना ये चल रहा है मेरे दिमाग में, शान्या अब ना वो चल रहा है मेरे दिमाग में, अब ये करेंगे अपन, वो करेंगे अपन, ऐसी चीज़ें. मेरे को ये जो ट्रेडिंग होती है ना, स्टॉक मार्केट, एक दिन ही वॉज सिटिंग, वी वेंट टू मसूरी राइट आफ्टर द वेडिंग, है ना, एंड हम रूम में बैठ के मुझे ये समझा रहा है कि इसको अब स्टॉक चलाना सीख शान्या, तू पैसे से पैसा बनाना सीख. मैंने कहा हाँ यही कर लेते हैं. वी वर सो हैप्पी एंड टेक्नो लवर, मतलब डांस, मस्ती, मजाक, मज़े. ट्रैवलिंग का बहुत शौक. अभी मैं और उसकी सिस्टर इन लॉ ना यही बात कर रहे थे कि हम शुभम का ट्रैवलिंग वाला सपना पूरा करेंगे. वो जहाँ नहीं कर पाया वहाँ पे हमें जाना है. वी वर टॉकिंग फ्यू डेज बैक. ट्रैवलिंग का बहुत शौक था. हम 2 महीने की शादी में 20 दिन घर में नहीं रहे. एंड इवन शादी हमारी फिक्स हुई है 13th ऑफ, वी मेट 1st October, 13th October वी डिड आर रोका 13 days, within 13 days. एंड उसके बाद से शादी, शॉपिंग, ये वो, एवरीथिंग. ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग. नाउ आई सी कि शायद हमारा लाइफ का ना बहुत कम टाइम था, तो हमने हर एक दिन हम मिले हैं. 1st October से हम हर दिन मिले जब तक हमारी शादी हो नहीं गई. शादी के बाद तो वी वर लिविंग टुगेदर, जब तक हमारी शादी नहीं हो हर दिन मिले. शाम को आ जाएगा, मतलब ऑफिस से आते हुए चल घूम के आते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं, चल ड्राइव पे के आते हैं, 10 मिनट के लिए मिल के जाए, बट वो हर दिन मिलना है उसने. ऐसा था. इट वॉज परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट. Lots of memories. A lot of memories. I can live all my life with those memories. Fantastic. And what did he, I mean, what was his view of Kashmir? हाँ, पता है ये चीज़ ना मेरे को बहुत ऐसा गिल्ट देती है. पहला तो उसका मन नहीं था कश्मीर जाने का, बिकॉज हम बाली से वापस ही आए थे. तो हम बाली से वापस आए तो कश्मीर की टिकट्स वगैरह सब हो रखी थी आफ्टर 1 वीक के बाद की. तो कहता यार मैं थक गया हूँ और ना अपन इतना घूम लिया है कि 2 महीने से मैंने बिजनेस देखा नहीं है, तो हम मन नहीं जाने का. मैंने कहा यार घर वालों के साथ एक ट्रिप कर लेते हैं, फिर विल चिल. फिर हम लोग कुछ समय तक कहीं नहीं जाएंगे. फिर अगस्त में हमारे 6 महीने होंगे तो वील गो अगस्त में अब कहीं पे, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे. तो समटाइम आई फील रियली गिल्टी कि मैंने क्यों उसको ये बोल दिया. शायद वो मना कर रहा था तो मैं मान जाती कि ठीक है तेरा मन नहीं है, कैंसिल करते हैं. पहला. दूसरा, हम लोग सोनमर्ग से वापस आ रहे थे, तो हम ट्रैवलर में थे हम लोग, पूरी फैमिली साथ में थी. तो हम और शुभम सबसे पीछे बैठे थे. तो इट वाज जस्ट लुकिंग, एंड मेरे को पहाड़ ना बहुत फैसिनेटिंग करता है, बहुत खुशी आती है मेरे को ऐसे देख के. आई एम अ माउंटेन पर्सन, ही इज़ अ बीच पर्सन, वैसा वाला सीन. तो मैंने उसको कहा कि यू आर अ बीच पर्सन, तो हाउ आर यू फीलिंग. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड यार शान्या कितने अपनों का खून बहा है यहाँ पे. हिज वर्ड्स. माय गॉड. दिस इज ऑन द डे, ऑन द सेम डे? नो, इट वाज 20 April. 2 days before that. मेरा हाथ पकड़े बोला कि मैं ना बहुत सुंदर है एंड एवरीथिंग, बट कितने अपनों का खून बहा है यहाँ पे, कुछ तो नेगेटिव है.
आई एम हैप्पी दैट सब लोग हैं, मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, बट ये बात ना मेरे को बहुत किसी लगता है कि मे बी ही वॉज इन फीलिंग अबाउट इट। क्योंकि मुझसे बोला सोच कितने हमारे लोगों का खून बहा है, कैसे मार दिए गए हैं यार वो लोग, ये उसने बोला था मुझसे। मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है, मैंने उसको ये बोला अब सब सही है, दैट्स व्हाट आई सेड, मैंने अब सब सही है, सी कहीं तेरे को लगा हम देख कितने आराम से घूम के आए हैं, तो वो कहीं लगा कुछ भी ऐसा, सी हाँ he got back कि हाँ ठीक है सही तो कह रही है, but he said that. But was he also, you know, feeling a little secure with the army, the forces? Yeah, we all were. Even जो होटल्स उसने ही बुक किए थे सारे होटल्स एंड एवरीथिंग, तो जो होटल उसने बुक किया था श्रीनगर में हमारा, वो CRPF के जो मेन हेड ऑफिस था उसी के पास, उसी के जस्ट सामने था। तो वी वर वेरी सेफ, एवरीथिंग वाज वेरी सेफ कि हमें लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। But a lot of people say वहाँ पे जो वैली में ये अटैक हुआ वहाँ पे there wasn't much deployment there. Did you notice something like that? वही तो, जब 5 दिन इतने सेफ निकल गए हैं तो छठे दिन में आपको लगता है सेफ ही तो है। No, there in the valley. We felt everything is safe only. But is it true that they weren't? No, nobody was there. Even JNK police was there. Police station was there only. Valley से नीचे ही police station है। नीचे। हाँ, वैली पहलगाम वो है जहाँ पे सब है, फिर वैली है, फिर बाइसरन घाटी है जहाँ पे हुआ था। तो जो पहलगाम वाले हैं, and they were almost 2000 people पूरे ऊपर से नीचे में। हाँ, बाइसरन से पहलगाम तक there were 2000 people। टूरिस्ट ठीक है। तो अब हम इतने, जब आपको लोग दिखते हैं ना तो यू नो कि अब सेफ है, सब सेफ है। तो वी डिड नॉट नोटिस कि ऐसा कुछ हो सकता है भी, शायद वो खाली होती वैली तो हम सोचते कि यार नहीं जाते वहाँ पे, इट्स वेरी आइसोलेटेड, लेट्स नॉट गो देयर। There were JNK officers who refused to help. हाँ, I was soaked in blood, so मैं मेरी बहन हम दोनों उनसे we were pleading कि help us, my husband is shot dead, and there are a lot of people trapped still. He said it clear. He replied कि हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। There were 2 JNK officers. My God. Did you say this to officials later? Yeah, I did. I did. I said it everywhere. I said this everywhere. अभी भी मैं वहाँ पे भी बोला, मैंने सबको बताया। उन्होंने मुझसे यही बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। Why are you there? Take it off. ये क्यों मिली आपको वर्दी? Help. शायद आप कोशिश करते तो शायद वो 26 नहीं होते, कम होते। कल परसों में NIA की न्यूज़ पढ़ रही थी एक कि उन्होंने 26 लोगों को मारने के बाद those terrorists they were celebrating with gunshots. Celebratory fire, correct. They were celebratory fire. How they had this much time? अगर आपको मैंने बता दिया था as a first victim, I came down सबसे पहले, मैं आपको खुला बता रही हूँ, आप अगर हेल्प करते ऊपर तुरंत जाके। ऊपर से नीचे आने में कितने देर लगा? Yeah, I cannot tell you sir. Roughly, half an hour. It's 7 kilometers. Yeah. बाइसरन से पहलगाम, it's 7 kilometers. We actually dragged ourselves down. हम because there's no pathway, तो हम literally अपने आप को drag down करते हुए लाए हैं। My God. That is why I'm telling you कि my parents had to go through physiotherapy for days. पैर swell हो गए थे, यहाँ चोटे। Me and my sister had bruises all over. It's very, very scary. Do you think they could have stopped it? They could have. They could have stopped the numbers. They couldn't have stopped the whole attack. They could have stopped the numbers. You feel they're involved? I'm just asking. Is that what came to your mind when you asked them a question and they said, no, I can't help? Maybe they thought they'll go, they'll be shot too. That's why they didn't go. क्योंकि उन्होंने बोला ये कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमें भी मार सकता है। Do you know if there was any action taken against them? No. No idea. No idea. I cannot even identify them. Of course. Because everything is so blur. I cannot identify कि वो कौन थे, क्या थे.
मेरे को तो ये भी लगता है कि as the people were running down, मतलब the terrorists and the helpers might have just got down with the crowd. Yeah, just pretended to be one of them. Yeah. How can you know कि कौन क्या है? जब वो बंदा पीछे बैठा हम समझ नहीं पाए कि कौन है. My final point with you, when I spoke to Kamakshi, like I said, one of the victim's wife, she broke down, in fact, on the call. And one, she didn't want to come in front of TV, and second, she said, "Sir, just imagine my son is a US citizen, and you know, I'm an Indian citizen, but my son was born there, he's a US citizen." And she said that, you know, the only breadwinner is now gone. Sorry? The only breadwinner, the sole earning member chala gaya. And I have my son, and I have to take care of him, and I'm not getting any help, is what she said, right? I was a little surprised, because I would have assumed that people would have stepped forward to help, and I told her that I will highlight her plight, because it's important to also. She said, "Sir, you don't understand what it is like to live in a joint family and having to be there with your son and not being able to do anything to help your son, or to have anybody help you monetarily," right? So the reason I'm telling you this is, do you have enough help? Have enough people come forward to help you to make sure that you're okay, your family is okay? My family is too big. वही इतने sufficient है, and I'm so literally blessed with the kind of family I've got. शुभम्स फैमिली, everyone, मतलब मैं खाना सही से खा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं सही से जा रही हूँ, अपना ध्यान रख रही हूँ. इफ़ आई एम ओके, वट अगर मेरा मन है कुछ लेने का तो आई एबल टू टेक इट. दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे लुक आफ्टर मी, बोथ द फैमिलीज, मेरी भी फैमिली एंड शुभम्स फैमिली ऑल्सो, दे लुक आफ्टर मी. देन आई हैव लाइक, दिस इज समथिंग सोशली रॉन्ग. जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा दे आर गोइंग थ्रू मेंटली, फाइनेंशियली, तो आई अंडरस्टैंड कि वो विथ टाइम सॉल्व आउट हो जाएगा, बट मोर एंड मोर यू नीड हेल्प हियर, है ना. आई वॉज वेरी ब्लेस्ड विद दिस. आई मीन लॉट ऑफ फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, शुभम्स फ्रेंड, माई सिस्टर्स फ्रेंड, दे स्टूड अप. दे वर स्टार्ट व्हेन वी रीच दिल्ली. जब हम श्रीनगर से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में 15 लोग खड़े थे हमें बाहर रिसीव करने के लिए. एंड देन इन कानपुर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु चेक अप ऑन अस आउटसाइड द फैमिली कि ठीक हो आप, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आउटसाइड द फैमिली, एवरीवन, मम्मी पापा को भी, मेरे को भी. सो दिस इज समथिंग कि मैं सोशली लोगों के अंदर होना चाहिए कि दिस फैमिली हैज गॉन थ्रू, दिस पर्सन हैज गॉन थ्रू. अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ द ट्रॉमा. नहीं निकल सकते अब अपने आप. मेरे को अकेले छोड़ दिया गया होता तो मैं नहीं निकल पाती सर. इट इज़ माई फैमिली, इट इज़ माई फ्रेंड्स स्टैंडिंग विथ मी, इट इज़ माई फैमिली फ्रेंड्स स्टैंडिंग विथ मी, जो खड़े होके मेरे साथ. आई हैव लिटरली, आई कैन आउट लाउड से, आई हैव अ आर्मी स्टैंडिंग विथ मी इमोशनली, जस्ट होल्डिंग माई हैंड व्हेन आई फील कि. अभी मैं मॉर्निंग में आई टेक्सटेड माई कज़न कि व्हाई दिस हैपेंड, नोबडी डिजर्व्स दिस. तो उसने मेरे को इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा, एंड देन शी कॉल्ड अप टू जस्ट चेक ऑन मी, एंड नोबडी टॉक्स टू मी अबाउट क्या हो गया कैसे. और बताओ, टोन ही चेंज करके बात करेंगे कि मैं so that you're okay. मैं वो टोन चेंज करके अपने दिमाग में ले जाऊँ, एंड देन आई प्रोसेस इट विद पॉजिटिव वे. करेक्ट. सो इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट समथिंग सिर्फ आपके ही घर वाले कर पाएंगे. इट्स अ सोशल थिंग. Of course, I remember, actually, I'll end with this one point that I think it was 23rd of April, I'm not sure, but one of the first families we brought live was your family, and I don't know whether it was your brother-in-law. My brother-in-law. Brother-in-law, he came live and he was very strong, and in fact, it was he was the first person to go on record and say that, you know, they asked him for his identity, and he said, "I'm very proud," my brother said, that he's an I am Hindu. very proud of my husband.
बिकॉज मेरे को ये भी पता है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि वो मुस्लिम है. Yeah. And then just think, these guys checked them, are they Muslim or not, by taking their pants off, and then they killed. Yeah. Yeah. How? क्या है? What is this? दिमाग के कितने गंदे कीड़े हैं आपके, ये कर रहे हो, इस हद तक जा रहे हो. Very bad. I mean, I don't know what to say, but I'll just tell you that I feel stronger speaking to you, and it's fantastic to see that you've come out stronger, and continue doing the good work that you are in terms of speaking about terror. And I was very impressed hearing you speak, and there is clarity of thought. I mean, it's unfortunate that you lost Shubham at a young age. He's just 28 years old, and you knew him for just 6 months. But from your memories and how you described him, it feels like you knew him for a very long time. Yeah, I keep saying that. मुझे लगता ही नहीं, I've just known him from 6 months. I feel like I knew him all my life. It feels like that. I just said, our souls were searching for each other. We found it. Now he's not in a human form of it, but his soul is still there with me. That is how I'm taking him with me, and that is how I'm going to take him with me. He is physically not there, but his soul is with me. Thank you for speaking to us.